Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic Books September 22nd, 2025. Top Current Affairs News, GK in Hindi and English and Newspaper Analysis. Asterisk Q1. 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? Asterisk What was the theme of International Day of Peace 2025? A. पीस फॉर ऑल बटा सभी के लिए शांति. B. एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड बटा शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें. C. बिल्डिंग ब्रिजेस ऑफ पीस बटा शांति के पुल बनाना. D. हार्मनी एंड होप बटा सामंजस्य और आशा. B. एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड बटा शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें. Asterisk explanation asterisk The International Day of Peace is observed on September 21st every year. The 2025 theme emphasizes urgent action for global peace. अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है. 2025 की थीम वैश्विक शांति के लिए तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देती है. Asterisk Q2. पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? Asterisk Which country did Pakistan recently sign a defense agreement with? A. UAE बटा संयुक्त अरब अमीरात. B. सऊदी अरेबिया बटा सऊदी अरब. C. चाइना बटा चीन. D. Turkey/. B. सऊदी अरेबिया बटा सऊदी अरब. Asterisk explanation asterisk Pakistan and Saudi Arabia signed a defense pact where an attack on one will be treated as an attack on both. पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा. Asterisk Q3. सितंबर 2025 में CISF के नए महानिदेशक कौन बने? Asterisk Who became the new DG of CISF in September 2025? A. प्रवीर रंजन बटा प्रवीर रंजन. B. प्रवीण कुमार बटा प्रवीण कुमार. C. राकेश अस्थाना बटा राकेश अस्थाना. D. राजीव रंजन बटा राजीव रंजन. A. प्रवीर रंजन बटा प्रवीर रंजन. Asterisk explanation asterisk Pravir Ranjan was appointed as the new Director General of CISF, responsible for industrial and airport security. प्रवीर रंजन को CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो औद्योगिक और हवाई अड्डों की सुरक्षा देखता है. Asterisk Q4. भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक खेल परिसर कहाँ उद्घाटित हुआ? Asterisk Where was India's largest and most advanced sports complex inaugurated? A. नरनपुरा अहमदाबाद बटा नरनपुरा अहमदाबाद. B. जयपुर बटा जयपुर. C. Lucknow/. D. Bhubaneswar. A. नरनपुरा अहमदाबाद बटा नरनपुरा अहमदाबाद. Asterisk explanation asterisk India's largest modern sports complex was inaugurated in Naranpura, Ahmedabad with advanced training facilities. भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक खेल परिसर अहमदाबाद के नरनपुरा में उद्घाटित हुआ, जिसमें उन्नत खेल सुविधाएं हैं. Asterisk Q5. सितंबर 2025 में 7 स्थलों के जुड़ने के बाद भारत के यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में कुल स्थल कितने हो गए? Asterisk After adding 7 sites in September 2025, how many Indian sites are in UNESCO's tentative list? A. 59. B. 65.
C. 69. D. 75. Astérisque coche épaisse blanchant. C. 69/69 astérisque. Asterisk explanation asterisk with 7 new natural heritage sites, India's total in UNESCO's tentative list has reached 69. 7 नए प्राकृतिक स्थलों के जुड़ने के बाद अब भारत के कुल 69 स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हैं। Asterisk Q6. हाल ही में किस राज्य ने कृषि जल मिशन शुरू किया? Asterisk which state recently launched the Krishi Jal mission? A. हरियाणा बटा हरियाणा, B. राजस्थान बटा राजस्थान, C. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश, D. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश, अंश D. राजस्थान बटा राजस्थान। Asterisk explanation asterisk Rajasthan launched the Krishi Jal mission to promote water conservation and efficient irrigation. राजस्थान ने कृषि जल मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और सिंचाई को बढ़ावा देना है। Asterisk Q7. प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? Asterisk which paramilitary force will Praveen Kumar lead from October 2025? A. CRPF बटा CRPF, B. BSF बटा BSF, C. ITBP बटा ITBP, D. CISF बटा CISF, अंश C. ITBP बटा ITBP। Asterisk explanation asterisk Praveen Kumar will take charge as the head of Indo-Tibetan Border Police, ITBP, from October 2025. प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के प्रमुख का पदभार संभालेंगे। Asterisk Q8. भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? Asterisk where was the 21st edition of Yudhabhyas between India and the USA held? A. राजस्थान बटा राजस्थान, B. अलास्का बटा अलास्का, C. उत्तराखंड बटा उत्तराखंड, D. कैलिफोर्निया बटा कैलिफोर्निया, अंश B. अलास्का बटा अलास्का। Asterisk explanation asterisk the 21st edition of Yudhabhyas was held in Alaska to enhance Indo-US defense cooperation. भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग बढ़ाना था। Asterisk Q9. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? Asterisk who topped the Global Innovation Index 2025? A. USA बटा अमेरिका, B. स्विट्जरलैंड बटा स्विट्जरलैंड, C. स्वीडन बटा स्वीडन, D. सिंगापुर बटा सिंगापुर, अंश B. स्विट्जरलैंड बटा स्विट्जरलैंड। Asterisk explanation asterisk Switzerland ranked first in the Global Innovation Index 2025 due to its strong R&D and technology ecosystem. स्विट्जरलैंड ने अपने मजबूत शोध एवं तकनीकी क्षमता के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में पहला स्थान हासिल किया। Asterisk Q10. 2025 फाइड ग्रैंड स्विस और वुमेन्स ग्रैंड स्विस के विजेता कौन रहे? Asterisk who were the winners of the 2025 FIDE Grand Swiss and Women's Grand Swiss? A. अनीश गिरी एंड वैशाली रमेश बाबू बटा अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू, B. मैग्नस कार्लसन एंड कोनेरू हम्पी बटा मैग्नस कार्लसन और कोनेरू हम्पी,
सी इयान नेपोमनियाची एंड हरिका द्रोणावल्ली बटा इयान नेपोमनियाची और हरिका द्रोणावल्ली। डी फैबियानो कैरुआना एंड हो यिफान बटा फाबियानो कारुआना और हो यिफान। अंश ए अनीश गिरी एंड वैशाली रमेश बाबू बटा अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू। Asterisk explanation asterisk Anish Giri won the open category, while India's Vaishali Rameshbabu clinched the women's title in Fight Grand Swiss 2025. 2025 फाइट ग्रैंड स्विस में अनीश गिरी ने ओपन वर्ग और भारत की वैशाली रमेश बाबू ने महिला वर्ग का खिताब जीता। सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 22 सितंबर सोमवार, नवरात्रि के पहला दिन। जय मां शैलपुत्री। इंड वर्सेस पाक, 8 दिन में भारत ने पाकिस्तान को दूसरी बार हराया। अभिषेक शर्मा ने खूब धोया, 7 गेंद पहले मिली जीत। बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच के दौरान कर रहे थे गाली गलौज। जीत के बाद अभिषेक शर्मा का हैरान करने वाला खुलासा, मैंने उनको जवाब बल्ले से दिया। एक हम नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी आज से लागू हो रहे सुधारों पर बोले। 2 विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, अमेरिका से तनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा संदेश। जीएसटी सुधारों को बचत उत्सव बताकर बोले पीएम मोदी, मेड इन इंडिया पर दे जोर, स्वदेशी पर गर्व। 3 प्रधानमंत्री ने 20 मिनट देश को संबोधित किया। बोले जीएसटी बचत उत्सव केवल वही खरीदे जिसमें देश का पसीना हो। 4 ट्रंप के H-1B वीजा फैसले पर पीयूष गोयल का तंज। केंद्रीय मंत्री गोयल ने ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा पर बढ़ाई गई फीस के संदर्भ में कहा कि लोग हमारे लोगों के टैलेंट से डरते हैं। उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीयों से आह्वान करते हुए कहा कि वह यहां आएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दे। 5 जबरदस्ती ले रहे श्रेय, चेहरा चमकाने की कोशिश। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के संबोधन पर तंज कसते हुए कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरल जीएसटी की जगह मोदी सरकार ने 9 स्लैब वाला गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और पिछले 8 साल में 55 लाख रुपए करोड़ वसूले। 6 मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि पीएम मोदी जीएसटी को लेकर अब 2.5 लाख रुपए करोड़ के बचत उत्सव की बात कर रहे हैं, जो गहरे घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने दाल, चावल, किताबें, दवाइयां, पेंसिल, ट्रैक्टर जैसे आवश्यक चीजों पर भी टैक्स लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। 7 जीएसटी की नई दरें आज से लागू, सामान सस्ते होंगे। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ कार, एसी की कीमतें घटीं। क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते में मिलेगा? 8 देश में जीएसटी सुधारों के समर्थन में भाजपा ने अभियान चलाने की तैयारी की है। भाजपा 22 सितंबर से जीएसटी बचत महोत्सव शुरू करने जा रही है। 29 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर भाजपा सांसद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाजारों में पैदल मार्च करेंगे। 9 पीएम मोदी आज अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर 5100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का देंगे तोहफा। 10 भागवत बोले, भारत आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर जो जरूरी हो करना चाहिए।
11 आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को अपनी वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए जो जरूरी हो वह कदम उठाने चाहिए, लेकिन इसके लिए सनातन दृष्टिकोण अपनाकर अपनी विकास यात्रा का मार्ग खुद तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया की बंटी हुई नीतियों के कारण आज भारत जैसी स्थिति में है, लेकिन भविष्य में इससे निपटने के लिए हमें अपनी पारंपरिक जीवन दृष्टि को अपनाना होगा। 12 राष्ट्रीय राजमार्ग -52 पर कोटा में रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। अजमेर से कोटा जा रही राजस्थान रोडवेज की एक बस में अचानक आग लग गई। बस कोटा शहर की सीमा में प्रवेश किया तो गियर बॉक्स के पास से धुआं उठता दिखाई दिया। चालक ने बिना देर किए बस को सड़क पर रोका और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। 13 बस में करीब 80 यात्री सवार थे। जैसे ही सभी यात्री बाहर निकले, कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। यात्रियों ने बताया कि अगर कुछ पल की भी देरी होती तो वे जिंदा नहीं बच पाते। बस में सवार एक महिला ने कांपते स्वर में कहा, हमने मौत को बहुत करीब से देखा। 14 अभिषेक शर्मा ने कैसे पाकिस्तानियों की बोलती बंद की, मैच के बाद कहा, वे बेवजह बहस कर रहे थे, मैंने बल्ले से जवाब दिया। 15 आधे राजस्थान से मानसून लौटा, 3 राज्यों से विदाई। एमपी में 30 सितंबर से वापसी होगी। बिहार में अगले एक हफ्ते तक बारिश होगी। 16 टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 1.18 लाख रुपए करोड़ बढ़ी। एसबीआई का मार्केट कैप हफ्ते भर में 35,953 रुपए करोड़ बढ़ा। एयरटेल की वैल्यू 33,215 रुपए करोड़ बढ़ी। 17 1 मीटर जमीन भी नहीं देंगे, ट्रंप की बगराम एयरबेस वाली धमकी पर अफगान विदेश मंत्री। जय श्री राम। सोमवार 22 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। रविवार को सीजफायर तोड़ पाकिस्तान ने फिर की गोलीबारी। एलओसी पर 40 मिनट तक चली भीषण जंग। ब्रिटेन कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक कदम, गाजा संकट के बीच फिलिस्तीन को मान्यता का ऐलान। फिलिस्तीन कभी नहीं बनेगा देश। ब्रिटेन कनाडा के फैसले पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू। नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसे 5 विदेशी नागरिक पटना भागने की फिराक में थे। बस स्टैंड से पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 मीटर जमीन भी नहीं देंगे, ट्रंप की बगराम एयरबेस वाली धमकी पर अफगान विदेश मंत्री। पीएम मोदी ने जीएसटी उत्सव की घोषणा की। नवरात्रि से शुरू होगा देशवासियों के लिए बचत का त्योहार। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा। जोधपुर में नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का करेंगे शिलान्यास। भारत की एंट्री 6th जेन फाइटर जेट डील में। राफेल से 100 गुना तेज, पाक होगा खत्म। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित। जीएसटी सुधारों पर दे सकते हैं जानकारी। एसओजीएटीएस की बड़ी कार्रवाई। 50 करोड़ की ठगी करने वाला प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल गिरफ्तार, 2 साथी भी दबोचे। भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने की भविष्यवाणी। ठंडी सर्दियां आने की संभावना बहुत मजबूत, लोग रहे तैयार। भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। जोगिंदर सिंह अवाना रहे मुख्य अतिथि। कहा, सरकार के सामने रखेंगे किसानों की समस्याएं। 7 युद्धरों के नोबेल शांति पुरस्कार कब मिलेगा? ट्रंप ने भारत पाकिस्तान समेत दुनिया के कई युद्धों को रोकने का फिर किया दावा।
भारत को भविष्य में आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए खुद बनाना होगा अपना रास्ता, बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। सेना के ट्रक में आग, हाईटेंशन लाइन से जला। उज्जैन में मालगाड़ी में लोड था ट्रक, जोधपुर जा रहा था सामान। पंजाब में महिलाओं को जल्द मिलेंगे 1,100 रुपए महीना, सीएम मान बोले तैयारियां शुरू। 18 साल से बड़ी उम्र की 75 लाख महिलाओं को फायदा। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट का निधन, संगीतकार चरणजीत आहूजा ने मोहाली में घर पर अंतिम सांस ली, कैंसर से लड़ रहे थे। हैवानियत की हदें पार, लिव इन पार्टनर की हत्या कर सूटकेस में भरा शव। फेंकने से पहले सेल्फी लेकर लगाया स्टेटस। आईएनडी वर्सेस पाक, 36 गेंद पर अभिषेक शर्मा की 74 रनों की तूफानी पारी, भारत ने फिर पाक को 6 विकेट से रौंदा। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय। ब्रिटेन ने फलस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मोरक्को यात्रा। मोरक्को कासाब्लैंका में भारत के पहले विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। इसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स एलटीडी, टेसल और मोरक्कोस रॉयल आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर बनाया है। शुरुआती चरण में 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स की असेंबली होगी, आगे चलकर प्रोडक्शन बढ़ाकर पूरे अफ्रीका में फैलाया जाएगा। राष्ट्रीय। भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि 2026। नीरज घायवान निर्देशित फिल्म होमबाउंड को चुना गया है। यह फिल्म पहले कैन्स अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हो चुकी है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। अर्थ का नया क्वासी-मून 2025 PN7। खोज हवाई स्थित पैनस्टार्स ऑब्जर्वेटोरी। यह एक एस्टेरॉयड है जिसे अर्जुना 2025 PN7 भी कहा जा रहा है। विशेष, यह एस्टेरॉयड पिछले 60 सालों से अर्थ के साथ सन का चक्कर लगा रहा है। आकार 62 फीट 19 मीटर। अंतर। मून सीधे प्लैनेट का चक्कर लगाता है, जबकि क्वासी मून सन का चक्कर लगाते हुए प्लैनेट के साथ साथ चलता है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। सीआईएसएफ नए डीजी प्रवीर रंजन, राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लेंगे। कार्यकाल 31 जुलाई 2029 तक। आईटीबीपी नए डीजी प्रवीण कुमार, राहुल रसगोत्रा का स्थान लेंगे। कार्यकाल 30 सितंबर 2030 तक। पुरस्कार और सम्मान। भारत की फिल्म होमबाउंड को 2026 के अकादमी पुरस्कारों ऑस्कर्स में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया। छत्तीसगढ़ विशेषांक। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहल, सुबह की मुस्कान। स्थान बिलासपुर। छात्रों को सुबह निःशुल्क नाश्ता और चाय उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपना पहला भोजन न छोड़े। पहल कुलपति अशोक कुमार चक्रवाल का विचार। नाश्ते में मिलेट आधारित खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। इससे पहले 2023 में स्वाभिमान थाली योजना शुरू की गई थी, जिसमें 10 में दोपहर का भोजन मिलता था। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज। स्थान कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर, गीदम और जशपुर।
क्षमता प्रत्येक कॉलेज में 50 सीटें, कुल 250 सीटों की वृद्धि। वर्तमान 2180 सीटें अब 2430 सीटें होंगी। खर्च प्रत्येक कॉलेज पर 600 करोड़। योगदान केंद्र राज्य 60-40। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। छत्तीसगढ़ कप 2025। स्थान रायपुर शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। सीजन तीसरा, शुरुआत 21 सितंबर 2025। आयोजक छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ। टीमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ की कप्तान कृति गुप्ता। गारेपलमा सेक्टर 2 में कार्य शुरू। स्थान जिला रायगढ़, तमनार ब्लॉक। कंपनी महाजेनको, महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक कंपनी। क्षेत्र 6.5 हजार एकड़। अनुमानित कोल क्षमता 23 लाख मिलियन टन। शुरुआत 18 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ में विज्ञान परिषद का गठन। स्थान रायपुर। संचालन रायपुर जिला विज्ञान कमेटी। उद्देश्य छात्रों में विज्ञान और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना। लाभ शोध कार्य, नए विचारों पर चर्चा, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन। मगरमुंही की रस्म बस्तर दशहरा। कब स्ट के चक्के और अचान एक सेल तैयार होने के बाद। परंपरा 7 मोगरी मछली, 1 बकरे और 1 अंडे की बलि, देवी दंतेश्वरी की आराधना। आगे की प्रक्रिया, अचान को रथ के पहिए में फिट किया जाता है। तीसरी बार काछन देवी बनेगी पीहू। कौन पीहू? 9 साल की बालिका, पनका मिर्गिन महराजाती। परंपरा 22 पीढ़ियों से चली आ रही 617 साल पुरानी परंपरा। स्थान भंगाराम चौक स्थित काछन गुड़ी, जीर्णोद्धार राजा दलपत देव। विशेष बेल के कांटे से बने झूले में देवी को झुलाया जाता है, कांटे का ताज पहनाया जाता है और देवी ही रथ संचालन की अनुमति देती है। 5वां अटल भूषण पुरस्कार समारोह 2025। स्थान प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली। अवसर अटल फाउंडेशन स्थापना दिवस 19 सितंबर 2025। सम्मानित 38 विशिष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार, अटल भूषण, अटल अलंकार और अटल आइकॉन पुरस्कार। छत्तीसगढ़ से प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, जशपुर को अटल भूषण पुरस्कार 2025। विशेष प्रबल प्रताप जूदेव अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like, beating heart and share.